Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study a really important topic, that is the defamation case. Now recently there was a defamation case which was filed against the Punjab Congress chief, that is Navjot Singh Sidhu. Why it was filed? Because of his speeches, okay, wherein he was praising two party members for being capable of making policemen wet their pants. This was the statement that was passed by a very famous politician and a Congress chief also, and hence this defamation case was filed against him, against this speech. So we are going to study in detail what exactly is the meaning of defamation and what relevance this case holds. And for GS paper 2 and prelims, this is important because in prelims they can give you four statements. They can ask you about the meaning or definition of defamation, and also they can give you four statements regarding the provisions which are involved in the defamation cases. Now if you have studied the defamation word and the cases involved in detail, you would be in a position to answer the question correctly. Now when it comes to GS paper 2, what kind of question they can frame? In the GS paper 2, questions can be framed based on the provisions, the relevance of the provisions of the defamation cases. You can quote examples also. How you can quote the examples? If you are reading the current affairs daily. Okay, let's get started. Class PDF will be uploaded on my Telegram channel. The link is given below in the description box. If you do not find the channel by clicking the link, what you can do is go on to Telegram and in the search option you can find the channel Simplifying UPSC with Ease. Okay, let's get started without any delay. Before we start, here's a quick announcement for all of you. As you know that UPSC 2022 exam is just coming up. So Unacademy has launched a very important offer for all of you, which has been extended till 5th Jan. Okay, that is today. आज तक ही ये ऑफर एक्सटेंडेड रहेगा, यानी कि 12 बजे तक. That is Resolve 2022. Herein, if you are using the code ARPITA10, this is the code. You can see there are no spaces in between. You will get directly 22% discount on all the Unacademy subscriptions. आप चाहे प्लस का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, आपके सब्सक्रिप्शन पर आपको डायरेक्टली 22% का डिस्काउंट मिलेगा ये कोड यूज करके. ठीक है, लिंक दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नए कोर्सेज आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए. So let's start with the defamation case. As I told you, because of the speech which was delivered by Navjot Singh Sidhu ji, this case was filed. Now ये controversy जो निकल कर आई है, इसमें एक term आया है defamation. इसका मतलब क्या है? Communication of a wrong statement. Wrong means false statement. Now what kind of false statement? ऐसे तो बहुत झूठ बोलते हैं लोग, but कैसा झूठ? ऐसा झूठ जिससे किसी की रेप्यूटेशन खराब हो, उसके लिए हम डिफेमेशन केस फाइल करते हैं. मान लीजिए मैंने आज कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट किसी पॉलिटिकल मेंबर के बारे में पास की, और उस रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से उस पॉलिटिकल मेंबर या कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप या प्रोडक्ट, उसकी रेप्यूटेशन को क्षति पहुंची, हानि पहुंची, तो वो जो कंपनी है या वो जो इंसान है वो मुझ पर डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट या मेरे एक्टिविटी की वजह से उसका रेप्यूटेशन खराब हुआ है. और डिफेमेशन केस कैन बी बोथ सिविल रॉन्ग, इट कैन बी सिविल रॉन्ग ऑल्सो एंड क्रिमिनल ऑफेंस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस पे ही हम डिफेमेशन केस डालेंगे, नहीं, सिविल ऑफेंस पे भी आ सकता है. मतलब मैंने एक स्पीच दे दिया ना नॉर्मल, और किसी की रेपुटेशन हर्ट हुई है, किसी प्रोडक्ट की रेपुटेशन हर्ट हुई है, मेरी स्पीच की वजह से उसके सेल्स पे इम्पैक्ट आया है, बिजनेस के रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आया है, किसी ग्रुप के इंटरेस्ट हार्म हुए हैं, उस केस में भी डिफेमेशन केस फाइल किया जा सकता है. डिफरेंस क्या, ये सिविल और रॉन्ग और क्रिमिनल ऑफेंस के बीच में डिफरेंस क्या आता है? It lies in the objects that they seek to achieve. Civil wrong, it tends to provide for redressal of wrongs by awarding compensation. देखो सिविल रॉन्ग में क्या होता है, इसमें ये होता है अगर मैंने कुछ गलत स्पीच दे दी तो मैं उस बंदे को, और उसके बंदे की रेपुटेशन खराब हुई है, उससे उसका सेल्स पे या उसके ऑफिस पे या उसकी सर्विस पे इम्पैक्ट आया है, तो मैं उसको कॉम्पनसेशन दे दूंगी. ठीक है, बट क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, पनिशमेंट मिल जाती है सीधा. मेरी किसी एक्टिविटी की वजह से तुम्हारा हाथ टूट गया, तुम्हारा पैर टूट गया, तो इस केस में क्या होगा, मैं सिर्फ कॉम्पनसेशन देकर तो भागूंगी नहीं ना, मुझे पनिशमेंट भी तो मिलेगी. ठीक है, तो ये हो जाता है क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग के बीच का डिफरेंस. सिविल रॉन्ग में मैं पैसों से मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देकर छूट सकती हूँ, क्रिमिनल लॉ में तो भैया सीधा पनिशमेंट ही मिलेगी, जेल हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, या फिर कुछ साल की, कुछ महीनों की जेल हो सकती है. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं लीगल प्रोविजंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द डिफेमेशन केस. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आर गिविंग अ लॉ एग्जाम. अगर आप लॉ एग्जाम भी दे रहे हो तब भी ये लीगल प्रोविजंस जानने काफी इंपॉर्टेंट होते हैं.
Criminal defamation has been specifically defined as an offense under which section of IPC? This you have to remember. 499 499 इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 499 जो है वो डील करता है क्रिमिनल डिफेमेशन से, नॉट सिविल, criminal. The civil defamation however is based on tort law. अब ये टॉट लॉ क्या होता है? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपने सीए का भी एग्जाम दिया है, सीपीटी, उसमें भी टॉट लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है. इवन इन लॉ एग्जाम टॉट लॉ इज टॉट. अगर आपके पास लॉ ऑप्शनल है उसमें भी टॉट लॉ पढ़ना पड़ेगा. सो टॉट लॉ इज एन एरिया ऑफ लॉ विच डज नॉट रिलाई ऑन स्टैट्यूज टू डिफाइन रॉन्ग्स बट टेक्स from ever increasing body of case laws to define what would constitute a wrong. देखो, एक होता है तरीका, मैं कुछ क्या गलत है उसको कैसे जानूंगी? मैं लॉ की बुक्स उठाऊंगी, उसमें देखूंगी हाँ ये चीजें गलत होती है और बता दूंगी हाँ भाई ये एक्टिविटी गलत है. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका होता है कि मैं एक्सपीरियंस देखूंगी, पास्ट के ऐसे क्या क्या केसेस हुए हैं जिसमें इन चीजों, इन एक्टिविटीज को गलत बोला गया है और उस बेसिस में मैं उस चीज को गलत बोलूंगी. तो एक तरीका होता है स्टैच्यूज पे या बुक्स पे डिपेंड होना, एक होता है अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड होकर बताना कि क्या गलत है क्या सही. तो सिविल डिफेमेशन को टॉट लॉ पे बेस किया गया है, मतलब बुक्स को देखकर हम नहीं बताते हैं क्या चीज गलत है क्या सही है, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताते हैं. ठीक है. सेक्शन 499 जो क्रिमिनल डिफेमेशन से डील करता है, इट कुड बी थ्रू वर्ड्स ऑल्सो, स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड थ्रू साइंस. मतलब अगर आप साइंस में कुछ ऐसे पास कर रहे हो ना जिससे सामने वाले का इंसल्ट हो रहा है, ठीक है, सामने वाले के प्रोडक्ट से एक्टिव या जो भी बिजनेस है उस पर इंपैक्ट आएगा, तो वो भी आपका क्रिमिनल डिफेमेशन का पार्ट होगा. सेक्शन 499 इट साइट्स एक्सेप्शंस. देयर आर एक्सेप्शंस जिससे आप बच सकते हो क्रिमिनल डिफेमेशन से. फॉर एग्जांपल इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक गुड. मतलब अगर मैं बोलती हूँ अपने यहाँ सोशल मीडिया हैंडल पे, इंस्टाग्राम पे जाके कि भैया ये जो बिस्किट है इस कंपनी का, इसमें ये मात्रा में केमिकल्स मिले हैं, इसको नहीं खाना. अब इसके बदले इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिस्किट वाली कंपनी मुझ पे आके क्रिमिनल डिफेमेशन डाल देगी, क्योंकि मैंने पब्लिक को आगाह किया है. मेरा इंटेंशन जो था वो पब्लिक गुड का था, यानी कि मैं लोगों को के हेल्थ को लेकर कंसर्न थी. ठीक है. मैं बिना किसी प्रूफ के बस बोल दूं इस कंपनी का बिस्किट बेकार है नहीं खाना, तो मेरे ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन हो सकता है. ठीक है. सो व्हेन माय इंटेंशंस आर गुड एंड दे आर मेंट फॉर द पब्लिक गुड, इन दैट केस आई कैन बी exempted from the criminal defamation. Okay. Now coming towards section 500, this is on punishment for defamation. अब इसमें punishment मिलती है section 500 के तहत. Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 to 2 years or with fine or with both. अब मान लो मैंने किसी का साथ कुछ ऐसा किया जिससे उसकी जो छवि है वो बेकार हुई, तो मुझे 2 साल की सजा और फाइन या दोनों ही देना पड़ सकता है. ठीक है. तो ये सेक्शन 500 इज डील्स विद द पनिशमेंट, 499 डील्स विद व्हाट इज डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन एंड द एक्सेप्शंस. याद रहेगा. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारी कंट्री में क्या होता है, इंडिया में ना कोई लॉ बना है तो मिसयूज तो होता ही है. इट हैपेंस इन द टैक्स रिलेटेड केसेस ऑल्सो. ठीक है. सीए क्या काम करता है? सीए क्या करता है? लोगों के टैक्स बचाता है. और टैक्स बचाना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं है ना, हमारी इकोनॉमी ही इम्पैक्ट होती है. तो यहाँ पर हमारी कंट्री में ना लॉ का थोड़ा सा मिसयूज हो ही जाता है. वैसे सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, हर कंट्री में ही होता है. तो यहाँ देख लेते हैं डिफेमेशन केसेस में कैसे मिसयूज होता है. Criminal provisions have often been used purely as a means of harassment. अब पता है क्या होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस कुछ लोग सिर्फ किसी को हैरेस करने के लिए भी लॉन्च कह सकते हो फाइल कर देते हैं. मतलब मेरी किसी से दुश्मनी है तो मैं उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस डाल दूंगी और बोल दूंगी इसने नहीं ऐसा एक्शन किया था, इसने ये कमेंट पास किया था. ठीक है. तो दिस इज डन टू हैरेस पीपल ऑल्सो गिवन द कम्बरसम नेचर ऑफ इंडियन लीगल प्रोसीजर्स, बिकॉज वी नो देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग लीगल प्रोसीजर्स इन इंडिया. लीगल प्रोसीजर्स इंडिया में ना सुनते ही लोग भाग उठते हैं कि भाई कौन जेल के और पुलिस स्टेशन के पचड़ों में पड़े. क्यों? क्योंकि भाई प्रोसीजर्स ही इतने कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है कुछ, कि लोगों को समझ ही नहीं आता लेमैन को कि कैसे क्या होगा. एक एफआईआर फाइल कराने से भी डरता है इंसान. ओके. सो द प्रोसेस इटसेल्फ टर्न्स इनटू पनिशमेंट. मतलब अगर आप तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाए, ये लाइन बोलते ही लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये पूरा प्रोसेस जो होगा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, ये खुद ही अपने आप में एक पनिशमेंट है. Critics argue that defamation law impinges upon the fundamental right to freedom of speech. अब कुछ critics ऐसे भी हैं बोलते हैं कि अगर आप डिफेमेशन लॉ का यूज कर रहे हो, यानी कि आप दूसरे के फ्री स्पीच की जो राइट है उसको आप क्या कर रहे हो, बंद कर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो.
ठीक है, समझ आ रही है बात? एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ दिस लॉ इज मिसयूज्ड. क्रिमिनल डिफेमेशन हैज अ पर्निशियस इफेक्ट ऑन द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझना अच्छे से, ठीक है. द स्टेट यूजेस दिस क्रिमिनल डिफेमेशन एज अ मीन्स टू कोर्स द मीडिया ऑल्सो, बिकॉज मीडिया को राइट है लोगों तक बात पहुंचाने का. ठीक है, मीडिया के पास, मीडिया ही तो एक लिंक होता है ना पॉलिटिशियन और लोगों के बीच का, डिपार्टमेंट्स और लोगों के बीच का. ठीक है, अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, मीडिया को डराते हैं कि भैया तुमने हमारे बारे में गलत स्टेटमेंट पास की ना अपने चैनल पर, तो हम तुम पे डिफेमेशन केस डाल देंगे. मीडिया तो जो सच्चाई है वही पहुंचा रही है, और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इस लॉ का मिसयूज किया जा रहा है मीडिया की आवाज को रोकने के लिए. ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ वेज थ्रू विच द डिफेमेशन केसेस आर, और डिफेमेशन लॉ यू कैन से इज मिसयूज्ड. अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसमें, बिकॉज देखो ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में बिल्कुल ही अपनी मनमानी करने लगेंगे लोग. सुप्रीम कोर्ट भी तो हमारी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जुडिशरी है जिसका अपना एक से होता है. सो व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट्स वर्ड? देयर वाज अ केस इन 2014 इफ आई रिमेंबर, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कोई केस था जिसमें सेक्शंस 499 and 500 were used. Okay, now in that case Supreme Court approved the constitutional validity of section 499 and 500, thereby protecting the defamation case law from the critics and the people who do not focus on self restraint. Even in August 2016 court passed strictures on the Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha. उस टाइम पर जयललिता जी थी, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिकॉज शी वाज मिसयूजिंग द क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ. ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफेमेशन केसेस. 11 मिनट्स में मैंने कोशिश की है कि आपको डिफेमेशन का पूरा अच्छे से मैटर समझा दूं कि होता क्या है, सेक्शन 499 क्या है, 500 क्या है. ठीक है, क्रिमिनल डिफेमेशन एंड सिविल डिफेमेशन, व्हाट आर दीज. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. नाउ इफ यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर thoroughly, please do not forget to like this video and also do not forget to subscribe to the channel, because एक बार आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपको टाइमली मैनर में नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. Okay, on this note we are wrapping up the session. Thank you everyone. Have a wonderful night ahead.